Assalamu alaikum ladies and gentlemen. Welcome back in today's video about the most powerful book on laws governing human behavior, the 48 laws of power. Today we will discuss from law number 25 to law number 32. So let's start with the name of Allah and with the hope that may we learn something new today and add something more in our personality. So let's start. The law number 25 is recreate yourself. Do not accept the roles that society posits on you. Recreate your identity to command attention and power. So, gentlemen, this law is basically related to your reputation, the image you have in the eyes of other peoples. अगर आपको लगता है कि आपकी वैल्यू, आपकी रेपुटेशन दूसरों की नज़रों में कम है तो ये लॉ आप ही के लिए. So first of all, what you have to do, you do not let other people to define your identity. क्योंकि जब कोई दूसरा बंदा आपका इंट्रो करवाएगा तो आपकी सेल्फ इमेज पर बुरा असर हो सकता है. For explanation, first of all, understand psychology say that not everyone is a nice person, so he can betray you. Always try to introduce you by yourself. कोशिश करें कि आपके रिलेटिव्स, आपके कोलीग्स जो कुछ आपके बारे में जानते हैं वो आपका बताया या दिखाया गया हो. अदरवाइज समवन कैन डैमेज योर रेपुटेशन एंड योर रिस्पेक्ट इन द आइज ऑफ अदर पर्सन. सो द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ इज बेसिकली डैट आपको मंथली या वीकली बेसिस पे दूसरों से अपने रिव्यूज़ लेने हैं, अपने बारे में पूछना है कि यार व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि मुझे अपने अंदर क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, या व्हाट आर द थिंग्स यू विल डिसलाइक अबाउट मी. सो you can rectify the problem, you can rectify that disease, and when you can rectify that disease you can absolutely solve it. The law number 26 is keep your hands clean. Always have a space code to blame. Let others do your dirty work while you appear spotless. Now, in order to explain this law, I will tell you that there is a situation. You are in your college and sometimes bad happened. For example, a fight will happen there and you report it to the principal. Now it has many consequences on your life. First of all, I will like to tell you about the bad consequences. सबसे पहले तो अभी उस लड़ाई के ऊपर जो इंक्वायरी होगी, जो पूछगिछ होगी, आप उसका एक हिस्सा बन चुके हो. द सेकेंड वन इज़ यू हैव अ बैड इमेज इन द आइज ऑफ अदर स्टूडेंट्स एंड दे विल नेवर ट्रस्ट यू अगेन. Absolutely, it has also the good consequences that you have a good impression in the eyes of principal, but you have to compare that the good consequences are more important for you or the bad consequences are more important for you and decide it accordingly. But you can also do one other thing, that someone else will deliver the bad news कि आपकी बजाय कोई दूसरा बंदा वो काम कर दे. सो आप इस तरह काफ़ी सारी चीज़ों से बच सकते हैं. So the law number 27 is play on people's need to believe. For example, you are a leader of a team. आपकी टीम को एक टास्क दिया गया है कि आपने एक प्रोजेक्ट विद इन दिस टाइम कंप्लीट करना है, लेकिन आपकी टीम उस रेजिलियंस के साथ, उस डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर रही. तो आपने उनको किस तरह से बेटर वे में काम करवाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू विल से टू देम दैट we have to complete this job within 2 or 3 weeks within this special time, so they will feel bored about it. Give them a goal to achieve, give them something big to think. आप ये भी कह सकते हैं उनसे कि ये काम करने के बाद उन्हें या दूसरे लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है. Because when they will think about the benefit, they will do the work with more dedication and more resilience. और इसमें आपका और उनका दोनों का ही फ़ायदा है. So this law is basically concerning this thing. The law number 28 is enter action with boldness. This law is basically regarding the execution of your plan, the courage you have. For example, you are in a college, university party, or in your professional life. You have the required skills for a job, but you stay unconfident, you stay uncourteous. You feel stressed because of the audience, so someone else will perform and he will got visible in the eyes of all other persons there in the party and win respect in their heart. So remember, if you feel hesitated, someone else will took the shot. Confidence always win more than skill. The law number 29 is plan all the way to the end. Think far ahead, anticipate obstacles and plan with clear goals in mind. There are different situations in interviews
like ISSB where the quality of initiative is checked. But one man suddenly stand up and shows his initiative, but after some time he got confused. So its good impression of taking the initiative goes waste. So what you have to do, plan the start and plan the end because both matters the same. अक्सर लोग ये पूछते हैं कि आपका स्टार्ट ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी एंडिंग ज़्यादा मैटर करती है. सो बोथ आर इम्पोर्टेंट एट देयर ओन साइड्स. आपका जो अच्छा स्टार्ट होता है वो आपकी ऑडियंस को अच्छा ग्रैब करता है, उनकी अटेंशन को आपकी तरफ लेके आता है. लेकिन जब आप एक अच्छी एंडिंग करते हैं तो आपके बाद जो कैंडिडेट्स आएंगे वो भी अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे. सो जजेस की आइज़ में आप हमेशा के लिए अपनी एक इमेज छोड़ के जाएं. इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छी एंडिंग क्रिएट करें. सो व्हाट यू हैव टू डू बिफोर टेकिंग द इनिशिएटिव, यू हैव टू थिंक दैट हाउ आई विल एंड द टास्क. सो द लॉ नंबर 30 इज मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस, हाइड योर एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस, लेट सक्सेस अपीयर नेचुरल टू ऑ एंड इंस्पायर. आपने अक्सर अपनी स्कूल लाइफ, कॉलेज टाइम, यूनिवर्सिटी या प्रोफेशनल लाइफ में देखा होगा, सम पीपल गॉट बिग अचीवमेंट्स बट दे शो एज इफ़ दे हैड नॉट मेक एनी एफर्ट टू अचीव दिस, कि ये सब तो ऐसे ही बाय चांस हो गया है. और आप उस वक्त सोचते थे कि शायद ये बंदा झूठ बोल रहा हो या ये शायद हमें धोखा दे रहा है, तो आप बिल्कुल ठीक सोचते थे. लेकिन वो बंदा भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक था, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी एफ़र्ट्स को, अपनी प्रैक्टिस को छुपा के रखते हैं, तो आपके सामने कंपेटिटर्स बहुत कम रहते हैं. इससे इन शॉर्ट आपको ही फ़ायदा हो रहा होता है कि आपके लिए कंपटीशन कम हो जाता है. सो व्हाट इज़ द लेसन देयर? You struggled all the night but stay calm. Do not let the people to measure your potential. The law number 31 and the most important law, control the options. Give people choices that all serve your purpose. Make them feel in control while you are pulling the strings. So आप में से अक्सर लोगों की ये शिकायत रहती होगी कि मेरा दोस्त या अगर आप एक वालिद या माँ हैं तो मेरा बेटा या बेटी मेरी बात नहीं मानते. तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये आपकी खामी है. आप हमेशा इनको इस तरह से ट्रीट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ ही इज़ योर फ्रेंड, देन आप उसको कहते हैं कि यार क्या आप मेरा ये होमवर्क कर दोगे, या आप क्या मेरी ये असाइनमेंट कर दोगे. सो एट फर्स्ट ही विल फील बोर्ड एंड थिंक से नो. सो आपको क्या करना है कि आपको हमेशा उसे दो चॉइसेस देनी है. यार आप मेरी ये असाइनमेंट अभी कर दोगे कि कल कर दोगे. अगर एट द स्पॉट वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा, वो बोर्ड फील कर रहा है, तो वो आपको ना कहेगा, आप उसको एक चॉइस दोगे. लेकिन जब आप उसको दो चॉइसेस दोगे, कल का ऑप्शन भी दोगे, तो शायद वो आपको आपकी असाइनमेंट कल कर दे. So what you have to do, you have to always give people two choices, that whether you do the task now or later. The last law in this video is play to people's fantasies. Reality is harsh. Offer fantasy, hope or dream and people will flock to you. सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जितने भी बड़े बिजनेसमैन, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, वो यही लॉ इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई विल लाइक टू गिव यू द एग्जांपल ऑफ पॉलिटिशियंस जब भी आपके पास वोट लेने के लिए आते हैं तो वो आपको ये नहीं बताते कि व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ द कंट्रीज़ इकोनॉमी नाउ, कि मुल्क की इकोनॉमी की सूरत हाल क्या है, कौमी खसारा क्या है, आया कि हम आपको बेटर फैसिलिटीज़ नेक्स्ट ईयर दे पाएंगे कि नहीं. बल्कि वो आपके साथ बड़े बड़े वादे करते हैं कि जैसे ही हम इलेक्शन जीतेंगे आपके रोड वगैरह नए बना दिए जाएंगे, आपका सिविल सिस्टम बेहतर कर दिया जाएगा, आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी जॉब्स के लिए, आपको बेटर हेल्थ अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, आपको फैसिलिटेट किया जाएगा. सो आपको वो ड्रॉबैक्स बताने की बजाय आपको फैंटेसी क्रिएट करते हैं आपके बारे में. आप उन जब चीज़ों को इमेजिन करते हैं तो नाउ यू विल फील गुड एंड हैप्पियर, सो यू विल गॉट एग्री टू वोट देम एंड दे विल विन द इलेक्शंस. अभी आप इस लॉ को किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं? आप अगले बंदे को उसकी खामियां बताने की बजाय, उसकी सच्चाई बताने की बजाय कि यार यू आर नॉट अ हार्ड वर्कर, सो लेट देम टॉक अबाउट देयर ड्रीम्स, लेट देम टॉक अबाउट व्हेन दे वर गॉट सक्सीड, कि उस बारे में सोचो कि जब तुम कामयाब हो जाओगे. सो दे विल working for their goals, working for their dreams in life.
So this is all about today's video from Brain Glow PG and Psychology. Subscribe for more information. Let's grow together. Stay with us, stay mentally strong and healthy. Thank you so much. Allah Hafiz.